Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, from today's video onwards, we are going to discuss all the questions of particular subjects. And in this video, we are going to discuss all the questions of Indian Forest Act. For preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services, I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And अगर आप हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं तो जो मेरी ये वीडियो है, आने वाली वीडियोस हिमाचल प्रदेश सीरीज़ की, उनको जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. नेक्स्ट इज 8. Whenever notification has been issued to constitute any land reserve forest, the forest must issue a proclamation. So specifying nearly as possible the situation and limits of the protest forest if the consequences that will ensue on the reservation of such forest, या फिर notice that compensation claim will be entertained, या fixing a period for claiming rights. इसका notice that no compensation claim will be entertained. C is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 6 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में. नेक्स्ट इज 9. द प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? दैट इज 29A इज द आंसर. नेक्स्ट इज 10. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ ऑल टिम्बर एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ये बिल्कुल ठीक है. Section 41 will override rules made by the central government to prescribe the route by which timber other forest produce may be imported. ऐसा नहीं है, वो ओवरराइड नहीं करता. सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रूल जो है वो ओवरराइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट वाले रूल को. ये लिखा हुआ है सेक्शन 41A ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में लीव ड्यूटी, ये ठीक है. फिर ऑनर द लैंड मे राइट कलेक्टेड दैट हिज लैंड विल बी मैनेज बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर एज रिजर्व्ड, ये भी ठीक है. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? बी इज द आंसर विच इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट 46. सेक्शन 24A ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ ऑनर. बी इज द आंसर. Next 47. The power to impose duty on timber and other forest produce, section 39 of the Indian Forest Act, vests in central government. A is the answer. Next 48. Section 45 Indian Forest Act deals with certain kind of timber to be deemed property of government until thereto proved may be collected accordingly. A is the answer. Next 49. Formation of village forest are dealt by which of the following section of Indian Forest Act? That is section 28. B is the answer. Next 50. Contravention of the act provided under section 26 Indian Forest Act leads to a penalty of imprisonment for a term which may extend 6 months of fine extend to 500 rupees, or with both. B is the answer. Next 46. Which of the following acts is not prohibited act in relation to reserved forest? तो सेट फायर ये प्रोहिबिटेड है. पैस्चर कैटल यस ये भी है. वर्शिप ऑफ सेक्रेटरी इन फॉरेस्ट ये नहीं है. क्वेरी स्टोन ये भी है प्रोहिबिटेड. तो सी इसका आंसर रहेगा. एंड ये प्रोविजन कौन सा? ये है सेक्शन 26 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. वहाँ पर ये लिखे गए हैं कौन कौन से प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं, उसमें ये मेंशन नहीं है, सी वाला. नेक्स्ट 47. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? If any person fans, lops and burns any tree reserved under section 30, कितना उसमें imprisonment है? which may extend to 6 months, और fine which may extend to 500 rupees, और both. तो B इसका आंसर रहेगा. Next 48. Which of the following section of Indian Forest Act provides the power of civil court in trial of suit to the forest settlement officer?
सेक्शन कौन सा है ये है सेक्शन 8, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 49, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? कितनी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन ऑफ 500। सो सी इज द आंसर। एंड ये कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 62 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। नेक्स्ट 50, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज एक्सप्लेन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 2? ये है क्लॉज 4 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। सो सी इज द आंसर। क्लॉज 2 में क्या है? फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। 3 में क्या है? फॉरेस्ट ऑफेंस। 4 बता ही दिया, 4A क्या है? ऑनर। Next 31, which of the following is not included within the meaning of term river used in Indian Forest Act? तो स्ट्रीम, कनाल, क्रीक है, पॉन्ड नहीं आता इसमें। सी इज द आंसर। और एक कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ मीनिंग ट्री डिफाइंड इन 27? तो उसमें क्या क्या नहीं आता? तो पाम्स है, उसमें स्कम्प्स हैं, ये स्कम्प्स है एक्चुअली, स्टम्प्स लिख दिया इधर। ब्रशवुड है, टी नहीं आता, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 33, इन द ट्रायल ऑफ सूट फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर मेक्स साइज द पावर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट? ऑफ अ सिविल कोर्ट। सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये? 72 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। Next 34, which of the following act is not prohibited act prescribed by section 26 of Indian Forest Act? तो आप वहाँ पर क्या नहीं कर सकते? सेट फायर टू रिजर्व फॉरेस्ट, ये प्रोहिबिटेड है। पैस्चर कैटल, ये प्रोहिबिटेड है। ग्रिडलेस्ट एनी ट्री, ये भी प्रोहिबिटेड है। मैनेज वाटर कोर्स, ये नहीं है। डी इज द आंसर। सिमिलर क्वेश्चन ये जो है 2018 में भी किया था हमने, वहाँ पर लिखा हुआ था वर्शिप कर रहे हैं अगर ट्री की, तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। Next 35, which one of the following section of Indian Forest Act deals with punishment for wrongful seizure of any forest property by the forest officer or police officer? That is section 62B is the answer. And 2018 में इसकी पनिशमेंट पूछी थी, कितनी है वो? 6 months की पनिशमेंट है और 500 रुपये का फाइन है। Next is 11. The forest settlement officer is appointed by state government under which of the following provision of Indian Forest Act? That is section 4 subsection 1 clause C। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इज 12, मैच करना है। अब ये फॉरेस्ट एक्ट से हैं ये डेफिनेशंस। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई हैं। कैटल है क्लॉज 1 में, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है क्लॉज 4, रिवर है 5, ट्री है 7। तो कैटल इंक्लूड्स रैम्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स कैचू, रिवर इंक्लूड्स क्रीक एंड ट्री इंक्लूड्स ये स्कम्प्स है। ये प्रीवियस जो 2017 में पेपर किया था वहाँ भी स्टम्प्स लिखा होता है, स्कम्प्स लिखा हुआ है बेयर एक्ट में। क्या बन गया इसका? 2413। 2413 बी इज द आंसर। 13, which chapter of Indian Forest Act provides for the power of state government to constitute protected forest? देखिए ये 2017 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, चैप्टर्स पूछे हुए थे वहाँ पर। चैप्टर 2 क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। 3 क्या है? विलेज फॉरेस्ट है। 4 क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तो सी इसका आंसर हो गया। 6 क्या है? ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ड्यूटी है ये। नेक्स्ट 14, हम मैच करने हैं सेक्शंस। पावर टू इम्पोज ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कितने में है? ये 39 में है, ये चैप्टर 6 है ये। फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट 28 है। पावर टू ट्राई फॉरेस्ट समरिली ये है 67 एंड पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट 64। तो क्या बन गया? 4123। 4123 ए इज द आंसर। Next is 15. Under which of the following section of Indian Forest Act the state government can invest forest officer
the power of civil court to compel the attendance of witness and production of document, and power to issue search warrant under CRPC. सेक्शन कौन सा है ये? 72. C is the answer. नेक्स्ट 36. ये मैच करने हैं सेक्शंस, डेफिनेशंस हैं अगेन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, कई बार कर चुके हैं हम पहले भी। तो कैटल की डेफिनेशन सबसे पहली है 2(1) है ना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस आती है, उसके बाद 2(4) में फिर क्या आएगा? आर आएगा, RST है ना। तो रिवर कितने में हुई फिर? 2(5) में, एंड 3(2)(7) में। अगर मान लो नहीं भी आता तो इसको आप कैसे करो? अल्फ़ाबेटिकली लगा लो और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो। तो क्या बन गया आंसर इसका? 2(3)(4)(1). 2(3)(4)(1). A is the answer. Next 37. Under which of the following section of Indian Forest Act the government has power to establish forest court? That is section 17. B is the answer. और ये 17 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है। Next 38. The DM or any magistrate first class may try summarily any forest offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months. B is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 67 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। नेक्स्ट 39 मैच करने हैं अब ये सेक्शंस हैं। तो पहला है द पावर टू इम्पोज ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये है सेक्शन 39। ए का हो गया 3। फिर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी लायबल टू कन्फिस्केशन, ये है 52। फिर पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर, ये 62 है। फिर पावर टू मेक रूल्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये 32 है। क्या बन गया? 3412। 3412 ए इज द आंसर। नेक्स्ट 40 फिर से मैच करने हैं। अब चैप्टर्स बताने हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के। तो पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स कहाँ पर है? ये चैप्टर 9 में है। फिर ऑफ कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड, चैप्टर 5 है ये। फिर ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये है चैप्टर 4। ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट एंड स्टैंडिंग टिम्बर, ये है चैप्टर 8। क्या बनेगा इसका? 3412। 3412 C is the answer. Next 36. The imprisonment for doing prohibited act in the reserve forest under section 26 of Indian Forest Act is up to 6 months and 500 का फाइन है। C is the answer. 500 का फाइन भी है और बोथ। 37 अब मैच करनी है लिस्ट, ये सेक्शंस को मैच करना है। तो पावर ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर कितने में है? सेक्शन 8 में है ये। फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट, ये है 28। फिर पावर टू मेक रूल्स फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये है 32 एंड कंपाउंड ऑफेंसेस 68। तो क्या बन गया इसका? 4312। 4312 B is the answer. Next 38. Which of the following chapter of Indian Forest Act deals with the control of timber and other forest produce in transit? That is chapter 7. C is the answer. देखिए मैच भी करते हैं ना कभी कभी, तो यही पता होने चाहिए। बताओ 5 क्या? कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड नॉट बीइंग प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ये भी कंट्रोल के बारे में है। लैंड, कंट्रोल ऑफ लैंड। फिर चैप्टर 9 इज पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। और 6 क्या है? ड्यूटी ऑन टिम्बर। नेक्स्ट 39. व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉर काउंटरफीटिंग एंड डिफेसिंग मार्क ऑन ट्रीज एंड टिम्बर एंड फॉर ऑल्टरिंग बाउंड्री मार्क्स, ये है 2 years की इम्प्रिजनमेंट है। C is the answer. Next 40. Which of the following have the power to try summarily any forest offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months or fine not exceeding 500 rupees or both under section 67 of Indian Forest Act? तो DM के पास भी है और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भी है। C इसका आंसर है बोथ A एंड B। और ये सेक्शन पहले ही पूछ चुके हैं ये। Next 6. Which one of the following section of Indian Forest Act deals with the formation of village forest? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इट इज सेक्शन 28। कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन।
नेक्स्ट 7, a person who commits an offence under 33 of Indian Forest Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to, और देखिए ये क्वेश्चन भी गलत है। अब लिखा हुआ है 33 क्या पेनल्टीज फॉर सेक्शन 32, ठीक है। 30 से 32 के जो सेक्शंस हैं उनकी जो कॉन्ट्रावेंशन हुई उसके लिए पेनल्टी लिखी है 33 में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 33 में मेंशन है पेनल्टी कितनी है, 6 months एंड 500 का फाइन। ए इसका आंसर हो सकता है, बट ये क्वेश्चन फिर भी ठीक से नहीं बनाया। नेक्स्ट 8, whenever it is decided to constitute any land as reserve forest under the Indian Forest Act, the state government shall issue notification in the official gazette। ये कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 4 में, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9, which of the following section of Indian Forest Act provides power of forest settlement officer। ये सेक्शन 8 है, ए इज द आंसर। Next 10, a duty may be imposed on timber and other forest produce under section 39 Indian Forest Act by central government, D is the answer। Next 16, which one of the following is not included within the meaning of tree under Indian Forest Act। तो ट्री में क्या नहीं आता, पाम है, केन्स हैं एंड स्कम्स लिखा हुआ है, बट ये नीम ऐड नहीं है। बम्बूज को जो है डिलीट कर दिया गया था बाय 2017 की अमेंडमेंट से। तो उस टाइम पर देखिए जो ये पेपर 2013 का है तो उस टाइम पर नीम आंसर था, बट आज के टाइम पे ये बी और डी दोनों ही आंसर हो गए। तो बम्बू भी नहीं है और नीम भी नहीं है। और ट्री की डेफिनेशन कहाँ पर है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट 17, रिवर डज नॉट इंक्लूड, रिवर में पॉन्ड नहीं होते, स्ट्रीम होती है, कनाल होती है, क्रीक होती है। तो ए इसका आंसर रहेगा। डेफिनेशन का है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट इज 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील्स विद पावर ऑफ द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। दैट इज सेक्शन 8, बी इज द आंसर। 7 में क्या है, इंक्वायरी बाय फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। फिर 9 में क्या है, एक्सटेंशन ऑफ राइट्स। एंड 10 में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम्स रिलेटिंग टू प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ट्रीटमेंट के बारे में है। तो बी इसका आंसर रहेगा। Next 19, which one of the following act is not prohibited under section 26 of Indian Forest Act। तो set fire to a reserved forest, ये तो prohibited है ही है। फिर trespasses and or pastures cattle, ये भी है। ये है clause B, ये है clause D। फिर clear or breaks up any land for cultivation, ये भी है। ये है clause H। फिर exercise of any right continue under clause C of 15(2), ये नहीं है। तो D इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 20, फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर। अब देखिए चैप्टर ये हर बार पूछते ही, मैं हर बार बताता भी हूँ। चैप्टर 2 क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है ना। चैप्टर 3 है विलेज फॉरेस्ट, बी इसका आंसर हो गया। 4 है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फिर है 5, द कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट एंड लैंड नॉट बीइंग प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, कंट्रोल के बारे में। इसको याद कैसे करना है, देखो रिजर्व्ड VP RVPC, ऐसे वो होता है ना, RSVP होता है, ऐसे आप RVPC बोल लो। नेक्स्ट 36, हु हैज द पावर टू लीवी ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो किसके पास पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन है 39 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। 37, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ए फॉरेस्ट कोर्ट बी कंस्टिट्यूटेड। ये सेक्शन 17, ए इज द आंसर। और एक रिपीट क्वेश्चन है, काफी रिपीट क्वेश्चंस हैं। 33, हु हैज द पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ ऑल टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट, सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा ये, 41 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। 39, who has the power of seizure when a forest offense has been committed as to any forest produce। पुलिस के पास भी है और फॉरेस्ट ऑफिसर के पास भी है, तो बोथ बी एंड सी, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा ये, 52 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट 40, एनी पर्सन कंट्रावेनिंग एनी रूल अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ विच नो स्पेशल पेनल्टी इज प्रोवाइडेड शैल बी पनिशेबल विद। Next 16, under which one of the following section of central government may levy a duty on timber or other forest produce। ये सेक्शन 39, बी इसका आंसर रहेगा। Next 17, which one of the following section empowers the state government to reserve forest।
तो ये सेक्शन 3A इज़ दी आंसर। 2 में केरों में डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट 18 फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट में भी साइंड बाय कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। बी इज़ दी आंसर। सेक्शन कौन सा है और ये 28 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट 19 अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट द टर्म कैटल डज नॉट इंक्लूड। तो कैटल टर्म में क्या नहीं आता? तो देखो कैटल की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2(1) ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ही, ठीक है ना। तो उसमें तो एलिफेंट है, कोल्स है, पिग्स है, काउ नहीं होती। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 20 द बार ऑफ अक्रूवल ऑफ फॉरेस्ट राइट मेंशन्ड इन अंडर सेक्शन 5। बी इज द आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.